So till now we have discussed about various types of variables which are there. We talked about independent variable, dependent variable, right? We discussed about the nature of each of these variables that is there, and at last we discussed about extraneous variables, and therein we talked about two natures of extraneous variable: confounding and intervening. Now, a lot of time you will see that stimuluses can be divided, further into various other classifications as well. ठीक है, sometimes the variables are stimulus variables. ठीक है, तो this is based upon the nature of variable. ठीक है, now herein you will see the stimulus variable is the variable which is going to bring about the change in our dependent variable. So the stimulus variable is always going to be independent variable and is going to have similar characteristics as a independent variable does. ठीक है, then we have another category on the basis of nature of variable, that is organismic variable. For example, if I talk about height of the person, weight of the person, which means it is based upon the participant's characteristic. ठीक है, जैसे एज ऑफ द पार्टिसिपेंट, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पार्टिसिपेंट एक्सेट्रा. नाउ दीज आर नोन एज इंडिविजुअल वेरिएबल एंड दे कैन ईदर बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इन नेचर. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ऑप्शंस आते हैं कि दे गिव यू सम ऑप्शंस की हाइट, वेट, एज एक्सेट्रा आर व्हाट काइंड ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, तो उसमें आप ऑर्गेनिस्मिक वेरिएबल चूज करोगे बिकॉज ऑल ऑफ दीज कैन बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. कभी कभी हम ये देख सकते हैं कि मे बी एक डाइट का वेट पे क्या इम्पैक्ट है, या फिर हम कभी कभी ये देख सकते हैं कि वेट का वेलबींग पे क्या इम्पैक्ट है एक्सेट्रा. तो वेट कैन ईदर बी यूज्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, so these are all organismic variable, the variable which are concerned with the characteristic of the participant. Then at last we have behavioral variables which are the response or outcome variable. For example, response rate. ठीक है, response rate, reaction time, error. ठीक है, so this is always going to be dependent variable. ठीक है, so the variables can also be classified based on the nature of the variable. Stimulus variable is always going to be the independent variable. Change variable, then organismic can either be independent or dependent, and these are the variables which are concerned with the individual characteristics. Then at last behavioral variable or response or outcome variable. क्लियर है. जनरली बेसिक क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा इसमें से, एक दो वेरिएबल के नाम दे देंगे एंड पूछेंगे ये कौन से टाइप का वेरिएबल है. ठीक है, मूविंग अहेड टू हाइपोथेसिस. ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले तो हम रिसर्च प्रॉब्लम बनाते हैं. वी लर्नड अबाउट व्हाट इज़ अ रिसर्च प्रॉब्लम. देन वी स्टडीड, हम क्या करते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं. ठीक है, वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे हम, तो हमने ये भी पढ़ लिया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. ठीक है, देन हमने ये पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर वी फॉर्मुलेट आर हाइपोथेसिस. नाउ व्हाट इज अ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव प्रेडिक्शन और assumption. ठीक है, which is going to tell us the relationship between our independent variable or dependent variable, or at times other two variables. Okay, a technical question. I would want everybody to type in their answers. ठीक है, if I am seeing the relationship between study hours and IQ फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे what is the IV and what is the DV? Anyone?
जल्दी से बताओ। Anyone? If we are looking at the relationship between study hours and IQ, what will be our IV and what will be our DV? अच्छा, ठीक है, बट हम तो किसी का इम्पैक्ट किसी पे देख ही नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ रिलेशनशिप देख रहे हैं। क्या हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि स्टडी आर IQ को इम्पैक्ट करता है या IQ स्टडी आर को इम्पैक्ट करता है? नहीं। हमेशा याद रखना, कोरिलेशन वाली स्टडी में कोई भी IV और DV नहीं होता। ठीक है, जब भी हम दो वेरिएबल्स के बीच में सिर्फ रिलेशनशिप देख रहे हैं तो कोई भी IV और DV नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम ये नहीं बोल रहे कि दिस इज इम्पैक्टिंग द अदर वेरिएबल, वी आर जस्ट लुकिंग एट द रिलेशनशिप। और यहाँ पे दोनों वेरिएबल कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं। क्लियर है? आर यू एबल टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ऐसे ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं बीच बीच में कि कोरिलेशन स्टडी में, या अगर एक स्टेटमेंट दिया जाएगा कि IV है DV है, आई थिंक ऐसा एक क्वेश्चन किसी पेपर में तो आया, या तो CUET में आया या नेट गेट में आया, आई विल सी। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम रिलेशनशिप देखते हैं तो हमेशा हम कोई भी वेरिएबल IV या DV नहीं होता। ठीक है, चारवी इज आस्किंग मैम IQ कॉन्टिन्यूस कैसे होगा? बच्चे IQ कॉन्टिन्यूस ऐसे होगा कि हम ये देख रहे हैं कि IQ स्कोर 0 तो चलो हो ही नहीं सकता, 1 से लेके मे बी 300 तक लाई करता है, तो 1 से 300 इनफाइनाइट वैल्यूज लाई कर सकती है ना 1 से 300 के बीच में। ठीक है, तो ये बहुत ट्रिक क्वेश्चन है, प्लीज़ इसमें कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, सो वेन एवर वी टॉक अबाउट हाइपोथेसिस, हम क्या करते हैं, हम एक अजम्पशन देते हैं या एक प्रिडिक्शन बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ IV एंड DV के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, या जनरली दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है, अब जब भी हमें हाइपोथेसिस फ्रेम करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल द हाइपोथेसिस शुड बी वेरी मच सिंपल एंड स्पेसिफिक। ठीक है, मैं वेग नहीं लिख सकती कि रिटेंशन रेट का इम्पैक्ट इस पर क्या होगा, नहीं। हाइपोथेसिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक। इफ़ यू रिमेंबर, जब हम स्टेप्स पढ़ रहे थे, आई सेड रिसर्च प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी वेरी वाइड बट द हाइपोथेसिस इज गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू ऑपरेशनलाइज। ऑपरेशनलाइज का मतलब क्या होता है, डिफाइन क्लियरली। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ऑपरेशनलाइज द वेरिएबल दैट आई एम चूजिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं, अब लोग तो अलग अलग इंटेलिजेंस को बोलते हैं। कोई लोग ये मानते हैं कि इंटेलिजेंस तो सिर्फ G फैक्टर या S फैक्टर होता है, कोई लोग मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की बात करते हैं। तो यू ऑलवेज नीड टू ऑपरेशनलाइज इन योर रिसर्च कि आप उस वेरिएबल को कैसे डिफाइन कर रहे हो और कैसे मेजर कर रहे हो। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर यू आर राइटिंग अ हाइपोथेसिस, इट शुड बी वेरी सिंपल, स्पेसिफिक, इट शुड बी केपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी लिख दूंगी और मैं उसका एक्चुअल कोई रिसर्च डिज़ाइन बना ही नहीं सकती। ठीक है, इट शुड बी केपेबल ऑफ वेरिफिकेशन। देन इट शुड बी रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जिस्टिंग बॉडी ये बोल रही है कि अगर सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल है और तो हाई सेल्फ एस्टीम है, तो मैं यही हाइपोथेसिस बनाऊंगी। आई कैन नॉट गो अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग लिटरेचर। ठीक है, क्योंकि प्रिडिक्शन तो या अजम्पशन तो हम वही बनाएंगे ना जो हमने पढ़ा है। ठीक है, एंड एट लास्ट ऑब्वियसली इट शुड बी ऑपरेशनलाइज्ड, डिफाइंड, क्लियरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट, कि आप कैसे मेजर करेंगे हमारे वेरिएबल को। ठीक है, सो नाउ आई वुड वॉन्ट एवरी वन टू राइट वन हाइपोथेसिस। नहीं, आई वॉन्ट एवरी वन, ठीक है, टू राइट द रिसर्च प्रॉब्लम एंड हाइपोथेसिस
of that particular research problem. जल्दी से, you have 2 minutes, 35 हो रहा है, ठीक है, you have 2 minutes, quickly think of one research problem and the hypothesis. Okay, everyone, please write quickly. Everyone, please write quickly. ठीक है, Suman has written, Prachi has written. Others, please write quickly. Okay, I will read one by one. ठीक है, सुमन एंड प्राची बच्चे, आपने हाइपोथेसिस नहीं ऐड किया. Okay, Manvi has written, thus parenting style impact the children. Very good, Manvi, very good. हमें basic proponent is research problem is always going to be a interrogative question. Very good. ठीक है, and then hypothesis is going to be specific. Neglectful parenting style leads to avoiding parenting style. एक पेरेंटिंग से दूसरे पेरेंटिंग स्टाइल कैसे, चलो कोई बात नहीं, बट गुड ट्राई मानवी. ठीक है, प्राची ने लिखा है इम्पैक्ट ऑफ. Ma'am, sorry to disturb. I have to write the avoidant axis attachment style. अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल. Style. अच्छा, ओके, गुड. ठीक है, देन ओके, प्राची ने लिखा है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ एंड हाइपोथेसिस द सोशल मीडिया इम्पैक्ट्स नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द मेंटल हेल्थ. ठीक है, प्राची, रिसर्च प्रॉब्लम हमेशा क्वेश्चन होगा. ऑल्सो सुमन सेम. ठीक है, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम इज रिसेंटली children are becoming more impatient as parents are not able to control their tantrum and more addicted to phones. चारवीं जो बच्चे ये रिसर्च प्रॉब्लम आपने लिखी है ना, इट इज़ मोर ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. ठीक है, अब आप इस ऑब्जर्वेशन को प्रॉब्लम में लिखोगे कि डज यू कैन से दैट
कि डज पेरेंटल इंटरनेट एडिक्शन इम्पैक्ट्स द टेम्परामेंट ऑफ चाइल्ड, या फिर डज द कंटेंट कंज्यूम्ड बाय द पेरेंट, you can say that does the content consumed by them impact the temperament or their personality or something like that. ठीक है, hypothesis is impact of internet content on, नहीं, ठीक है, कि क्या आपको क्या लगता है कि इंटरनेट से क्या होगा, कंटेंट का इम्पैक्ट क्या होगा, स्पेसिफिक लिखना है. ठीक है, गौरांगी हैज़ रिटन द हाउ डज मेंटल हेल्थ गेट्स अफेक्टेड बाय मेडिटेशन. ओके, hypothesis no significant effect of meditation on mental health. ठीक है, ओके ओके, इसमें हम थोड़ा सा और क्लियरली डिफाइन करेंगे, बट गुड इनफ गौरांगी. ठीक है, देन डिम्पल हैज़ रिटन सिनेमा अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा डिम्पल, डज या फिर आप ये लिख सकते हो कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सिनेमा इन डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन. हमेशा एक क्वेश्चन के फॉर्म में होगा रिसर्च प्रॉब्लम. जो हम लिखते हैं ना टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है, तो हमेशा याद रखना रिसर्च प्रॉब्लम इज ऑलवेज इंटेरोगेटिव इन नेचर. ऑब्जेक्टिव इज ऑलवेज गोइंग टू बिगिन विथ टू असेस एट्सेट्रा, एंड हाइपोथेसिस विल बी अ क्लियर स्टेटमेंट कि हमें क्या लगता है कि क्या रिजल्ट होंगे, क्या हम प्रिडिक्ट करते हैं. ठीक है, बट गुड ट्राई. ठीक है, गुड ट्राई एवरीवन. इज इट क्लियर टू एवरीवन कि कहाँ क्या मिस्टेक थी? गुड इनफ. ठीक है, नाउ we can understand hypothesis. There are two different types of hypothesis that we talk about: null hypothesis and alternate hypothesis. ठीक है, let me add another slide. ठीक है, देखो, जो null hypothesis है, it is the hypothesis of no significance. ठीक है, for example, if I want to see the effect of a particular medicine on मे बी स्लीप या फिर चलो डिप्रेशन. ठीक है, सो द नल हाइपोथेसिस वुड से दैट देयर विल बी नो इम्पैक्ट ऑफ सो एंड सो मेडिसिन ऑन डिप्रेशन. ठीक है, एंड नल हाइपोथेसिस इज डिनोटेड एज H नॉट. ठीक है, O नहीं, H नॉट. ठीक है, सो बेसिकली इट विल टेल अस दैट देयर इज नो रिलेशनशिप, एंड अगर कोई रिजल्ट आ भी रहे हैं तो इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ एनी चांस, या फिर हमने कुछ गलती कर दी है. ठीक है, देन कम्स ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और रिसर्चर हाइपोथेसिस. ठीक है, विच इज गोइंग टू बी डिनोटेड एज H1 और HA. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये 1 और A हैं वो नीचे होंगे सुपर टेक्स्ट. ठीक है, सो इट एक्चुअली टेल्स अस द रिलेशनशिप दैट वी थिंक इज गोइंग टू बी देयर बिटवीन द वेरिएबल. तो व्हाट विल बी द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी कि देयर विल बी अ इम्पैक्ट ऑन डिप्रेशन. नाउ आई वांट टू आस्क एवरीवन. ठीक है, डोंट यू थिंक कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस 3 तरह की हो सकती हैं. फर्स्ट, विच इज सेइंग दैट देयर इज गोइंग टू बी सम इम्पैक्ट. सेकंड, विच सेज दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. एंड थर्ड, विच सेज नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. होता है ऐसा? अगर मैं यही देखूंगी व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेडिसिन on depression, then there can be 3 ways that I can write my hypothesis. Alternate hypothesis, एक कि there will be an impact, second there will be a positive impact, and third there will be negative impact. हो सकता है ऐसा? Do you all agree? Now, why do we write essay separately? The alternate hypothesis can be of 2 types. ठीक है, either two-tailed or non-directional, or one-tailed which is directional in nature.
For example, if I say that there is going to be some impact, it means I am not identifying the direction of outcome or direction of result. मैं ये बोल रही हूँ कि result नेगेटिव साइड में भी लाई कर सकता है और रिजल्ट पॉजिटिव साइड में भी लाई कर सकता है, विच मीन्स दैट माई हाइपोथेसिस इज अ, ठीक है, माई हाइपोथेसिस अ, वेट माई पेन हैज स्टॉप्ड वर्किंग. So what I was saying was कि if I write that there is no impact, ठीक है, if there is some impact, it means that I am not defining the direction of result. The result can either lie in the negative end or either lie in the positive end, which makes it a non-directional hypothesis or a two-tailed hypothesis, which means the result can lie in this tail or that tail. Clear? Okay, what is a two-tailed hypothesis? But if I determine the direction, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि there will be a positive impact, ठीक है, it means that I am identifying the direction. ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, राइट टेल्ड. अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो कौन सी हाइपोथेसिस है, राइट टेल्ड. ठीक है, राइट हैंड साइड. एंड अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट टेल्ड. ठीक है, एंड वी आर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्ट. क्लियर कि द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कैन बी रिटन इन two major ways. It can be written either as a two-tailed hypothesis or as a one-tailed hypothesis, and one-tailed can also be segregated into two types, right-tailed and left-tailed. Clear? ठीक है, so I am going to dictate an example and you will all type in कि what kind of hypothesis, what kind of alternate hypothesis is that. Internet addiction will impact the overall well-being of the individual. What kind of alternate hypothesis is that? One-tailed or two-tailed? Internet addiction will impact overall well-being. What kind of hypothesis is that? Two-tailed hypothesis. Very good, everyone. And if I write that internet addiction will negatively impact the overall well-being, what kind of hypothesis is that? One-tailed hypothesis. Right or left? Left-tailed. Very good, everyone. So proud of you all. ठीक है, so we have discussed two types of hypothesis, null hypothesis and alternate hypothesis. Null hypothesis is denoted as H naught and it is the hypothesis of no significance. अगर हमारा result आ भी जाता है कुछ, it is purely because of chance according to the null hypothesis. And when I talk about alternate hypothesis, it says that the result is significant in nature. ठीक है, so that is majorly about a null hypothesis and alternate hypothesis. If you have any query anywhere, please let me know, then I will move ahead to next topic. Yes, Charvi. तो मैम हम लोग रिसर्च करते वक्त दोनों लिखते हैं, नल भी लिखते हैं ऑल्टरनेट भी लिखते हैं, या हम लोग खुद डिसाइड करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम देख के कि हमें नल लिखनी है या ऑल्टरनेट? देखो, ज़्यादातर हम सिर्फ ऑल्टरनेट मेंशन करते हैं क्योंकि व्हाट डिड आई से, ऑल्टरनेट इज़ द रिसर्चर्स हाइपोथेसिस. नल तो हमेशा यही कहेगी कि देयर इज़ नो इफेक्ट. ठीक है, बट ऑल्टरनेट इज़ व्हाट वी राइट. जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम H1 H2 मतलब फर्स्ट हाइपोथेसिस, सेकंड हाइपोथेसिस एक्सेट्रा, वो सिर्फ ऑल्टरनेट लिखते हैं.
क्लियर? बट जब हमें अपना रिजल्ट इंटरप्रेट करना होता है, ठीक है, तो अभी वैसे हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में करेंगे, बट जस्ट टू एड ऑन टू योर क्वेरी, लाइक टू योर आंसर, आई वुड लाइक टू टेल यू, फॉर एग्जाम्पल 2 हाइपोथेसिस हैं, ठीक है, एक बोल रही है कोई इफेक्ट नहीं है और दूसरी बोल रही है कि इफेक्ट है, तो दोनों में से एक ही ठीक हो सकता है। ठीक है, सो वेन एवर द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस इज ट्रू वी रिटेन दैट, ठीक है, या फिर ठीक है, अदरवाइज हम जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज ट्रू एंड व्हाट इज रॉन्ग। इज इट मेकिंग सेंस टू यू ऑल? एक ही चीज़ ठीक हो सकती है, या तो इफेक्ट नहीं होगा या इफेक्ट होगा, तो अगर एक गलत है तो दूसरी ठीक है, एंड वाइस वर्सा, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल जब भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो हम ये लिखते हैं कि आर हाइपोथेसिस वाज रिजेक्टेड या आर हाइपोथेसिस वाज एक्सेप्टेड, या फिर नल हाइपोथेसिस वाज रिटेन्ड, जब कोई इम्पैक्ट नहीं होता तो, ठीक है? डज इट मेक सेंस? चारवी क्लियर है अभी आपको? तो मैम मतलब दोनों ही लिखते हैं ना हम लोग? बच्चे देखो, नल आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नल तो हमेशा नो ही बोलेगा ना, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हो, जैसे अगर आप ये देख रहे हो कि अटैचमेंट स्टाइल का इम्पैक्ट क्या है सेल्फ एस्टीम पे, तो नल हाइपोथेसिस तो हमेशा यही बोलेगा कि देयर इज नो इफेक्ट, तो वो लिखने तो का कोई मैम फायदा नहीं है पेपर में। नल हाइपोथेसिस का फिर हमारा मतलब यूज क्या रहा? अगर हमें मालूम है कि वो तो नो ही बोलना है और वो रिटेन होगी या नहीं होगी, तो फिर नल हाइपोथेसिस का हमारा यूज क्या रह गया? बच्चे जब हम अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं तो हम यूज़ करते हैं नल को, कि हमारा अगर फॉर एग्जांपल ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस गलत निकल गया तो वी रिटेन द नल हाइपोथेसिस, गॉट इट? तो इंटरप्रिटेशन के टाइम पे काम आता है। अब जैसे कुछ टीचर्स होते हैं वो आपको बोलेंगे नल भी लिखो ऑल्टरनेट भी लिखो, बट जनरली अगर आप ओवरऑल रिसर्चेस पढ़ोगे तो वहाँ पे सिर्फ ऑल्टरनेट लिखा होता है, नल नहीं लिखा होता। समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ? अगर तुमने कुछ रिव्यू या ऐसे कभी लिटरेचर पढ़ा है तो तुम देखना कि स्टाइल ऑफ राइटिंग वैरी करता है फ्रॉम जर्नल टू जर्नल या पेपर टू पेपर। तो कुछ लोग दोनों लिखते हैं, कुछ लोग एक ही लिखते हैं, बट ज़्यादातर लोग सिर्फ ऑल्टरनेट ही लिखते हैं, और ऑल्टरनेट ही लिखनी चाहिए, क्योंकि नल लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप फॉर एग्जांपल जब आप मेथडोलॉजी लिखते हो तो आप लिखते हो ना एम, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, तो उसमें अगर मैं नल भी लिखूँ ऑल्टरनेट भी लिखूँ क्या फ़ायदा? नल में तो हमेशा नो इम्पैक्ट ही आएगा ना, तो इट्स बेटर इफ़ आई जस्ट राइट ऑल्टरनेट। ठीक है, इसलिए हम सिर्फ ऑल्टरनेट लिखते हैं व्हेन वी राइट दी मेथडोलॉजी, बट जब हम इंटरप्रेट कर रहे होते हैं तो वी नीड टू कंसिडर बोथ। मेक सेंस? ठीक है, सो आई थिंक वी आर गोइंग टू रैप अप आवर क्लास टिल हेयर ओनली टुडे। कल हम बहुत मतलब वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द टाइप्स ऑफ एरर दैट कैन बी देयर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, तो हम कल वो पढ़ेंगे। एक वीडियो है जहाँ पे मैंने एरर्स डिस्कस किए हैं, सो आई विल बी शेयरिंग दैट वीडियो विद यू ऑल। एक बार प्लीज़ वॉच दैट वीडियो और मतलब देख के आना अच्छे से, एंड देन हम क्लास में दोबारा से वो टॉपिक करेंगे तो ज़्यादा मतलब बेटर कंसोलिडेशन हो जाएगा तुमको टॉपिक का। ठीक है, बट whatsoever we read today, we talked about research problem, we talked about various types of variables, we talked about types of hypotheses which are there. If you have any query anywhere, please let me know, then we will wrap up our class. Clear? ठीक है, देखो आज फर्स्ट क्लास थी, आई हैव ट्राइड टू टेक इट अ लिटिल स्लो, बट हम पेस अप करेंगे। ठीक है, इतना स्लो हम नहीं कर सकते, ये बहुत बेसिक आइडिया है जिनके बारे में पता होना चाहिए, देन वी विल क्विकली पेस इट अप। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।